Let's continue with the day 6th lecture. Just last two, three topics I'm covering that. The last two, three topics, we understand the args. Args is nothing to send multiple number of data through function call. Like what we did in this example, we have to declare multiple variables to send the data after function calling. But if we use arg, we no need to mention multiple variables. The same thing will be done by args. And arg is taking the data in the form of tuple. We checked the data type, it's tuple. Then after using for loop, we unpack the args variables. Okay. Now we have to do one practice question in which what we are going to do, we are finding, we are designing a program in which what we are going to do, we are using power exponent, power function. Power function, what power function do? Like 2 raised to power 2 is equal to 4. 2 raised to power 3 is equal to 8. This type of things. What we will be do? We will be passing two things. Power. See how much power we have to find, and we are going to find other thing. Easy thing and a list for tuple. We will be sending one list or one tuple, and we will be returning back list of powers, list of its power. करो इसको. One more advanced thing you have to cover in this topic. If user forget to enter args, we forget how to enter args, to send args by function calling, then we have to print message that you have not passed any list or args. You have to send this message. Those persons who are not able to do at their own, they can see the screen. I'm doing side by side. Like we are declaring one list with numbers, like list of numbers is equal to make it simple. Change 2 to 6, 2 to 8. Then after find power. Here we will be sending two numbers. List of numbers
Then we have to declare the function. Function name is find power. Let's take one number, POV, power, and list as lister 1. We are taking as arguments. By default, it's taking as tuple. You can check. Further, if args, then return. What we have to do, we have to return the power. What is the power? So that we have to I to power. If for I in range. For I in range. Else print. What we have to do, you have not passed any number. Let's run this code. Output. For I in args.
ठीक है, सबका हो गया। राजन ने भेजा है। जानवी इसी वीक में कर देंगे। अटेंडेंस शीट में मार्क करो। ठीक है। ठीक है, अगर किसी का नहीं हुआ तो इधर देख लो। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने बनाई ली है, लेकिन किसी का नहीं हुआ तो समझ लो ये बना हुआ है। यहाँ पे जो कैच था वो क्या है, यहाँ पे हमें स्टार लगाना पड़ेगा। वी आर सेंडिंग ए लिस्ट, यू नीड टू राइट मेंशन स्टार, बिकॉज otherwise it will be considered as a single argument. Okay, single argument. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास क्वार्क्स। क्वार्क्स की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो चैट विंडो में। कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसका बेनिफिट क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमने डेटा लेना है, तो उसको क्वार्क मानेंगे। पहले इसका एक प्रोग्राम करते हैं, फिर थोड़ी सी थ्योरी द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे। सैंपल प्रोग्राम क्वार्क, समझ लो क्वार्क होता है। डेफिनेशन सैंपल, डिक्लेयर क्या किया है, क्वार्क। कीवर्ड आर्गुमेंट्स को डबल स्टार से करेंगे रिप्रेजेंट, नहीं तो आर्ग्स की तरह ही ले लेगा इसको। ठीक है, अब पहले तो भेजना क्या है इसमें। सैंपल के अंदर हम भेजेंगे एक डिक्शनरी, जैसे कि नेम इज इक्वल टू, नाम लिख दो। उसके बाद जो उसकी वैल्यू है वो लिख दो। एज इक्वल टू 30, सिटी इज इक्वल टू मोहाली, से लिख दो। इसको हमने भेज दिया क्वार्क में, तो डिक्शनरी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। डिक्शनरी को प्रिंट कैसे करते हैं, ये कॉमा बी ई ना, क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है, डिक्शनरी है, तो आइटम्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे, ए कॉमा
ठीक है, ये प्रिंट हो गया। किसी को ना समझ में आया वो सैम्पल प्रोग्राम? तो इसको ना समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, की इज इक्वल टू नेम वैल्यू ईच थी, की इज इक्वल टू एज 30, की इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं। ठीक है, क्वार्स का समझ में आ गया? तो और देखेंगे क्वार्स के अंदर। अब इसी डिक्शनरी को हम बना पहले से, पहले से हमने इसको बनाया हुआ है डिक के अंदर। डिक वन इक्वल टू डिक को रख के डिक्शनरी डेटा अगर सेंड करना है फंक्शन कॉलिंग के थ्रू, कैसे करेंगे? राजन, कैसे सेंड करेंगे अगर डिक्शनरी डेटा हमें सेंड करना है फंक्शन कॉलिंग के थ्रू? डबल पोस्ट लगा। हम्म, कीज को भी कॉमन करेंगे। ये वाली संख्या यहाँ पे डबल स्टार। ठीक है, अगर मेंशन डिक्शनरी को सेंड करना है हमने तो इस तरह से कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फंक्शन विद ऑल टाइप ऑफ पैरामीटर। फंक्शंस विद ऑल टाइप ऑफ पैरामीटर्स। फाइंडर को बताने के लिए तब ये डिक्शनरी है। डिक्शनरी के लिए डबल स्टार यूज करते हैं। अगर लिस्ट वगैरह होगी तो सिंगल स्टार यूज। चलो एक फंक्शन बनाओ जिसके अंदर सारे तरह के जो आर्गुमेंट्स हैं वो उसके अंदर पास हो जाए। ये सारे तरह के फंक्शन पास करेगा। वो कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, बाद में समझ में नहीं आएगा। वो जो टर्मिनोलॉजी यूज करेगा वो यूज करेगा PADK। P स्टैंड्स फॉर पैरामीटर्स। उसके बाद A स्टैंड्स फॉर आर्ग्स। ठीक है। उसके बाद फिर D स्टैंड्स फॉर D स्टैंड्स फॉर डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स। लास्ट के अंदर K स्टैंड्स फॉर क्लास। तो हमने जो सीरीज है वो ब्रेक नहीं करनी, सेम सीरीज रखनी है इसकी। एक प्रोग्राम बनाते हैं, सैंपल प्रोग्राम फंड नाम से। इसका नाम रख देते हैं जैसे कि नेम आर्क्स। इसी सीरीज में रखना है, सीरीज नहीं ब्रेक करनी। लास्ट नेम इक्वल टू, जैसे कि मान लो फिक्स है, डिफॉल्ट पैरामीटर ले लिया। इसके बाद हमने मेंशन कर दिया क्लास, क्लास मेंशन कर। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं सबको। प्रिंट नेम आर्क्स कॉमा लास्ट नेम कॉमा फिर पास करेंगे वैल्यू। ठीक करना। इस 1 2 3 4 5 कॉमा A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 2। ठीक है। डिफॉल्ट के लिए कुछ नहीं किया हमने, डिफॉल्ट को ऐसे ही छोड़ दिया। देखो सारा कुछ प्रिंट हो गया सीरीज में। जो यहाँ पे डिफॉल्ट था इसके पास कुछ नहीं गया, तो यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं। क्या था अपना, पैरामीटर्स।
फिर ये है अपनी क्वार्ट्स। पता लग जाएगा कि क्वार्क कौन सा है, ये देखते हैं। तो नॉर्मल पैरामीटर हमने पास किए वो यहाँ पे चले गए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो यहाँ पे हमने सिंपल ऐसे कॉमा कॉमा लगा के लिख दिया, इसने अपने आप को खुद ही देख लिया कि ये डिक्शनरी टप्पल है, तो टप्पल कंसीडर कर लिया उसको अपने। ठीक है, इसको उसने अपने आप ही डिक्शनरी मान लिया। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं पास किया, जो मेजर कॉमर्स है वो तीन है ये वाले। उसके बाद इसको इसने क्या माना, डिक्शनरी। पर जब हम फंक्शन पासिंग विद ऑल द पैरामीटर्स है तो सीरीज ब्रेक नहीं कर सकते पीएडी के। ठीक है, नहीं तो एरर आएगी। यही इसके अंदर मेन जो पॉइंट है। अब एक प्रैक्टिस प्रोग्राम करो छोटा सा इसका, सेम। एक फंक्शन बनाना है हमने। फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना। स्ट्रिंग को रिवर्स करना खुद से, विदाउट यूजिंग रिवर्स फंक्शन। पर रिवर्स तब करना है जब हमने उसको बोला हुआ है कि फ्लैग, हमने इसको ट्रू बोला हुआ है, फ्लैग इज ऑन, कि रिवर्स कर दो। अगर हमने उसको बोला कि फ्लैग ऑफ, है ना, जो अगर फॉल्स है तो रिवर्स नहीं हो। तो देखो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले तो हमने कोई फंक्शन बनाना है। उसके लिए हमें अपना नाम भेजना पड़ेगा या लिस्ट भेजनी पड़ेगी। लिस्ट भेज दो, स्ट्रिंग रिवर्स ना करो। स्ट्रिंग के अंदर जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स कर दो, उसको अपडेट कर दो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। हम क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना लेंगे। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, इसको हमने वन कर दिया। इसके अंदर हमने नाम लिख दिया अपना जो भी चाहिए। ठीक है जी। हमने इसको रिवर्स करना है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन में रख के इसको भेज देंगे। फंक्शन का नाम रख देते हैं फंक्शन रिवर्स। इसमें इसको भेज देंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कॉमा। हम हमने इसको बताना है कि ट्रू या फॉल्स। इसको हम यूज करेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ये हमने डिक्शनरी में रख के भेज दिया। ऊपर क्या करेंगे, एक फंक्शन, यही वाला फंक्शन जो हमने कॉल किया है इसको डिफाइन करेंगे। रिवर्स फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें सिंपल लिस्ट चाहिए।
और लिस्ट के साथ उसको क्वार्क्स चाहिए। क्वार्क्स के अंदर क्या है, वो क्या रिटर्न करता है हमेशा, क्वार्क्स क्वार्क्स हमेशा की को रिटर्न करता है। हमें उसकी वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए क्वार्क्स डॉट गेट फंक्शन यूज कर लेंगे। गेट वैल्यू किसकी चाहिए हमें, रिवर्स की। अगर ये इक्वल टू ट्रू है तो इक्वल टू ट्रू है तो रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न क्या करना है, रिवर्स रिटर्न स्ट्रिंग का रिवर्स हमें आता है करना। तो स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग का नाम लेंगे, एन ले लो, ले लिया। उसके बाद उसका रिवर्स कर दिया, -1 फोर एन इन एन। ठीक है, सिंपल सा बन गया। अगर फॉल्स है तो, अगर फॉल्स है तो रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो। नेम और टाइटल कर दो इसको, ताकि हमें पता लगे कुछ चेंज हुआ है। टाइटल और नेम इन एन स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट्स का डाउट था कि यहाँ पे हमने स्टार यूज किया था जब हमने लिस्ट को पास किया था। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने जब लिस्ट को पास किया था यहाँ पे हमने स्टार यूज किया। अब सेम लिस्ट यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टार नहीं यूज कर रहे। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हमने आर्गुमेंट्स यूज किए थे, आर्ग्स। यहाँ पे हमने आर्ग्स नहीं यूज, इसको रिसीव करने के लिए हमने प्रॉपर लिस्ट की लिस्ट ही भेजी है। ऐसे सेम यहाँ पर अगर हम डिक्शनरी को एज ए डिक्शनरी ही भेज रहे हैं तो हम यहाँ पे डबल स्टार यूज नहीं करें। जब उसको एज ए क्वार्क्स भेज रहे हैं, क्वार्क्स है ना, कि जितनी मर्जी डिक्शनरीज ले लो या कुछ भी, तो उस जगह के ऊपर हम क्या यूज करेंगे, डबल स्टार क्वार्क। तो इसको यहाँ बंद करना है, फिर यहाँ से स्टार्ट। इनको रिवर्स कर दो और अब चलेगा। ठीक है, ये नाम उल्टा हो। यहाँ पे भी टाइटल यूज कर सकते हो आप, दो टाइटल। अगर आपने फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटलाइज कर, ठीक है। अपर भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो कन्वर्ट करने के लिए अपर। एक बार समझ लो इसको थोड़ा सा। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट क्या है इसके, तो आर्ट्स के। सबसे फर्स्ट नेम क्या है, बेनिफिट है इसका, हमें क्वाल्स हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमें
वेरिएबल का नाम या नंबर उसका याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। छोटा सा बेनिफिट तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है ना पार्क्स में। जैसे हमने यहाँ पे एज इसको, अगर यहाँ पे इसको डिक्शनरी ले लेते हैं, मान लो अगर डिक्शनरी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें इसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक ठीक कर लेते हैं इसको। क्या ये स्टोर करेगा सर? एरर आ गया ना, यहाँ पे एरर आ गया। समझ में आई बात? अगर आ जाए, अगर क्वार्क यूज नहीं करेंगे तो ये कैसे सेंड करेंगे इसको यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ? ठीक है। धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी चीजें। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है, तो कई बार इसको हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कर देते हैं। तो फंक्शंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फंक्शन है लैम्डा। लैम्डा। अब एक फटाफट प्रोग्राम बनाओ ऐड टू नंबर्स का। सिंपल एक प्रोग्राम, फास्ट, जल्दी बनाओ। ऐड टू नंबर को चैट में सेंड करो। फोटो नहीं सेंड करनी, कोड सेंड करनी। सिंपल प्रोग्राम ऐड टू नंबर्स बना के देखिए। इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था। जल्दी भेजो, फिर मैं खुद ही बनाता हूँ। प्रोग्राम तो नहीं। ऐड टू, जैसे ऐड टू नंबर का हमने प्रोग्राम बना लिया, 1 कॉमा बी। रिटर्न क्या कर रहे हैं उसमें? A+B। ये रिटर्न कर, तो पास क्या करेंगे? ऐड टू के अंदर टू नंबर पास कर दिए, इसकी 2, B पास कर दिया। तो सारे प्रोग्राम को हम लैम्डा से कैसे करेंगे? लैम्डा क्या करता है? जैसे कोई भी प्रोग्राम है उसको हमने डिफॉल्ट प्रोग्राम बनाना है। कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे? लैम्डा।
इसे सेम प्रोग्राम हमने बनाया ऐड अंडरस्कोर टूल। कोई लिख देंगे लैम्डा के इक्वल टू लैम्डा ए कॉमा बी। रिटर्न क्या करना है, कोलन के बाद वो लिख दो ए प्लस बी, हमने रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऐड अंडरस्कोर टू टू कॉमा फाइव लिख दो। फिर ये क्या करेगा, अपने आप फंक्शन को कॉल करके आंसर दे देगा, ये देखो इसका आंसर दे। 5 + 2 7 का सही आंसर देगा। बनाओ इसको साथ ही, मल्टीप्लाई का बनाओ, सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करें, लैम्डा के साथ। ठीक है, इस तरह के नाम ना लो इनपुट, जो डिफाइन टाइप के नाम है ना, इस तरह के नाम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक प्रोग्राम बनाओ लैम्डा के साथ ग्रेटेस्ट नंबर का फाइंड करने का। जैसे दो नंबर गिवन है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू लैम्डा। नंबर क्या है, ये भी कंडीशन क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स ए रिटर्न करना है ना, हमने ट्रू फॉल्स नहीं करना, एल्स बी को रिटर्न कर, बस प्रिंट करा दो। देखने में सेम सा लगता है। 10, 20, 40 बस कुछ नहीं है, थोड़ा क्विक है, थोड़ा सिंगल लाइन में हो जाता है, ज्यादा फर्क नहीं। इफ एल्स कैसे यूज किया है, देख लो एक बार। पहले क्या किया था हमने, यहाँ पे प्लस किया था यहाँ पर। हमने क्या बोला था कि कॉलन के बाद वाली चीज क्या है, जो रिटर्न है, रिटर्न क्या करना है, ठीक है। यहीं पे भी किया हमने लैम्डा। पहले हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए कॉलन से पहले कि कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज करेंगे। उसके बाद हमने कॉलन के बाद जो रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है, ए को रिटर्न कर दो, साथ में कंडीशन। कब करना है रिटर्न, इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, भाई तुम बी को रिटर्न करो, अच्छा काम। चलो अभी पहले इसको रिवाइज करो, जो लैम्डा और ये कंसेप्ट की हैं दो, तो आर्क्स को और इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एनएमुरेट, इनुमिरेट, एनम। करो रिवाइज फटाफट सारा टॉपिक ये वाला। जो ओल्ड प्रोग्राम्स हमने फंक्शंस वाले किए थे ना, इसके अंदर ही है।
सबको रिवाइज करो लैम्डा के साथ, परफॉर्म करो। इतने 1 या 2 दिन में अपनी कंप्लीट हो जाएगी और करनी पड़ेगी। देन आफ्टर लाइब्रेरीज करेंगे, उसको साथ साथ रिवाइज करते रहो। जावा स्क्रिप्ट का रजित अभी याद नहीं इतना मॉड्यूल, कह नहीं सकते कि एरो फंक्शन के जैसा है या नहीं। आप ऑनलाइन या चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। लैम्डा बेसिकली एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन। इसकी हम वैल्यू कहीं पे भी स्टोर करके कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें डेफ फंक्शन, डेफ स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है, कीवर्ड डेफ यूज करके हम पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं, वहां पे भी रिटर्न लिखते हैं। अगर हम चाहते नहीं फंक्शन का नाम लिखना, रिटर्न लिखना, कट शॉर्ट करना चाहते हैं, तो ये जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है ना, ऐसे एक तरह का आप ये मान लो कि फंक्शन कॉम्प्रिहेंशन। फंक्शन को अगर छोटा करना है तो हम लैम्डा कीवर्ड वहाँ पे यूज कर रहे हैं। इतना सही काम है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। टॉपिक देखो, इन्यूमरेट। न्यूमरेट न्यूमरेट क्या करता है, बेसिकली जब हम लूप्स वगैरह यूज करते हैं तो हमें एक वहाँ पे काउंटर लगाना पड़ता है चेक करने के लिए कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसे कोई एक लिस्ट बना लो, लिस्ट बना, तो नाम ऐड कर लो, नेम वन, नेम 22, नेम 1212, कुछ स्ट्रिंग्स की हमने लिस्ट में। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उसकी अगर पोजीशन देखनी है तो उसका काउंटर हमने लगाना पड़ेगा। और लिस्ट वन, इसकी पोजीशन कैलकुलेट करना हो तो पीओएस कॉमा, इसकी पोजीशन क्या है और है क्या वहां पे, फिर फिर उसको पोजीशन को प्लस भी करना पड़ेगा प्लस। ठीक है, पोजीशन पता लगी इसकी, पर हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ना करें इसको, ऐसे हम ना करें इसको, प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करना चाहें तो हम मेमोरी यूज कर सकते हैं। तो फिर ये मेमोरी से कैसे होगा, ये वाला प्रोग्राम हमने बनाया था सेम, लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो लिस्ट है उसको मेमोरेट में रख दिया, मेमोरेट। ये अब क्या रिटर्न कर देगा, दो चीजें रिटर्न कर देगा, भी कर देगा और पीयूएस भी खुद ही रिटर्न कर देगा। पीयूएस भी खुद ही रिटर्न कर देगा। जब इसको एक बार बंद कर देते हैं प्रोवाइड, फिर इसको रन करेंगे तो सेम आउटपुट ही आएगी।
लेकिन अब दोनों का यूज सेम है। बस फर्क क्या पड़ गया अलग से, खुद ही एक ये भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लिस्ट बनाई और हमने अपना काम कर। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। इसके बाद मैप फंक्शन। मैप फंक्शन स्क्वायर वाला फंक्शन बनाओ। स्क्वायर वाला, एक नंबर हमने एक लिस्ट पास की, साथ में उसका स्क्वायर अभी बनाया ना, अभी 2 मिनट पहले। इसको दोबारा बनाओ। हमने पावर वाला बनाया था ना, तो स्क्वायर वाला बनाओ। स्क्वायर के लिए सेम फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लो और बनाओ इसको। मुकेश ये क्या किया है, इन्यूमरेट का मिस यूज कर दिया स्क्वायर फाइंड करने के लिए। कुछ नहीं करना रहा, बस स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिंपल फंक्शन ना, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर फाइंड कर लो, स्क्वायर फाइंड कर लो। पावर, पावर 2। ठीक है, क्या है अपने पास लिस्ट 1। ये फंक्शन है, स्क्वायर फाइंड कर रहा है हर एक नंबर का। ये रेस्टोर 2 करना है। अब इसको अगर पहले रिसीव करना था तो यहाँ पे 2 वैल्यूज लेनी पड़नी थी। अगर स्क्वायर करना था तो एक ही चाहिए थी कि इसको रिटर्न कर दो। अब सारी लिस्ट के लिए हमें लूप लगानी पड़ेगी यहाँ। यहाँ से देखो, यहाँ लूप लगानी पड़ेगी ना, एक एक को पास करना पड़ेगा, या पूरी लिस्ट को भेज के यहाँ पे हमें इसको पास करना पड़ा था, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको मैप फंक्शन से क्या करेंगे, यहीं पे आइट्रेशन लगा देंगे। तो आइट्रेटर है ना, इसको यहीं पे डाल देंगे। स्क्वेयर को, स्क्वेयर फंक्शन को आइट्रेट कर दो किसके साथ, लिस्ट 1 के साथ। ठीक है, काम हो गया अपना। अब इसको प्रिंट कैसे करना है वो बताता हूँ। और इतना का समझो, ठीक है, यहाँ पे पास हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी।
अब स्क्वायर नाम की अलग से एक लिस्ट बना लो, फिर इसको भी बोल दो लिस्ट बना दो मैप फंक्शन को, फिर हमें रजिस्टर रिटर्न कर दो। लिस्ट इसने पास कर दी, आंसर आ गया। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने की थी, उसके साथ फाइंड करो स्क्वायर्स को। अब देखो दोनों में से आसान क्या है, तीनों में से देखो, मैप फंक्शन इजी है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इजी है, या लैम्डा इजी। आंसर भेजो, तीनों में से कौन, तीन टेक्निक्स कर ली हमने स्क्वायर फाइंड करने के लिए या पावर फाइंड करने के लिए, तीनों में से बताओ कौन सी इजी है। नाम भेजो टेक्निक का, कौन सी टेक्निक आपको इजी लगती है, हर एक के अपने अपने व्यूज हो। तो एक प्रोग्राम बनाओ, अभी तक आंसर आया नहीं उसमें तो। एक प्रोग्राम बनाओ, उसके अंदर आपने एक लिस्ट दी हुई है हमें स्ट्रिंग्स की, बढ़िया लिस्ट, लिस्ट वन, उसमें करेंगे इसको फाइंड आउट कौन इफेक्टिव है। ये लिस्ट दी हुई है, इसको तीनों तरीके से करो। सिंपल फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। दूसरा मैप फंक्शन से करो। तीसरा इसको लैम्डा से करो। फोर्थ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है राजा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज द बेस्ट वे। तीनों तरीके से करो, रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटे स्क्रीन के ऊपर राजन, स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करनी, स्ट्रिंग लेंथ देख के एक लिस्ट फाइंड करनी है जो रिटर्न करे स्ट्रिंग लेंथ। पहले किया हुआ है हमने ये, इसको रिपीट कर रहे हैं हम चार तरीके से। आउटपुट क्या देगा जी, आउटपुट इसकी लेंथ देगा, लिस्ट एज ए लिस्टिंग, लिस्ट टू को रिटर्न करेगा, यहाँ पर इसकी लेंथ मेंशन्ड होगी। मान लो कि फर्स्ट की थी मैं 0 1 2 3 4 5 की है, 9 13, मान लो, ठीक है, ऐसे ये चीज रिटर्न करेगा। सारे अपेंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, बिना अपेंड के भी तो कर सकते हैं हम। उसको सीधे ही अगर रिटर्न करा देंगे, वो टप्पल रिटर्न करेगा, फिर टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे।
ये भी ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा कि जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला तरीका है वही बेस्ट है चीजों के लिए। पर कहीं कहीं पे आप लैम्डा भी इजी फील करोगे, लैम्डा इजी है। यहाँ पे मेजरली हमने फंक्शन कॉल करने में कुछ छोटा फंक्शन डिफाइन कर। असाइनमेंट 1 के मैंने रिस्पॉन्सेज देखे थे, कई बच्चों ने कॉपी पेस्ट कर दिया कोड। असाइनमेंट 1 के अंदर कॉपी पेस्ट नहीं करना था कोड, वहां पे जस्ट आपने रैपलिट का जो आपने जहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया है उसका लिंक डालना था। इसको एडिट कर दो, एडिट करके अपने रिस्पॉन्स को सही कर दो। और जिसने असाइनमेंट 1 अपलोड नहीं की वो कर दो, आज ही लास्ट डेट है। 9 AM तक का टाइम था, चलो कोई बात नहीं, आप आज में इसको कर दो खत्म। कल असाइनमेंट 2 देंगे हम। सबने रैपलिट के अंदर ही करनी है असाइनमेंट। कर प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी, प्रोजेक्ट की फाइल की हार्ड कॉपी सबमिट करनी। प्रोजेक्ट तो बनाओगे वैसे, जैसे रैपलिट के अंदर या VS कोड के अंदर कहीं पे भी आप बनाओगे उसको। ठीक है। सबने प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी फाइल सबमिट करानी है। नहीं, अभी नहीं शुरू करना प्रोजेक्ट। हम आपको बताएंगे, पहले आप अप्रूव करवाओगे ना प्रोजेक्ट, क्या बनाने लगे। कुछ बच्चे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, उनको तो हम असाइन करेंगे। जो दूसरे बच्चे हैं उनके रिव्यू हम करेंगे कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं।
अब बताओ क्या है फाइनल आउटपुट, कौन सी टेक्निक इस मेथड के लिए सबसे अच्छी रही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। चलो सिचुएशन क्रिएट करो जिसके लिए लैम्डा इजी रहेगी। राहुल मैप फंक्शन देखो मैं बताता हूँ। आप लूप यूज करते हो, एक तो होता है आइट्रेट, एक होता है आइट्रेटर। उसको आइट्रेट करते हैं ना किसी से, जैसे आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। उसको क्या कर रहा है, वो एक वैल्यू दे रहा है मैप फंक्शन की और भी बहुत यूजेस हैं, सिर्फ ये नहीं है। उसको हमने आइट्रेटर अगर देना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये रहा, इधर आओ रहा, इसको देखो। ये हमने क्या किया है, यहाँ तक का देखो, सिर्फ इतना इतना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक का देखना, ठीक है। इसमें क्या किया, वो एक लिस्ट बनाई है सिंपल। हमने एक फंक्शन बनाया है स्क्वेयर नाम, क्योंकि स्क्वेयर फाइंड कर सकता है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये लिस्ट है, ये रिप्लेस हो जाए या एक नई लिस्ट बन जाए जिसके अंदर इनके स्क्वायर्स पड़े हों, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ये आउटपुट आए हमें। तो फर्स्ट तरीका क्या था कि यहाँ पे हम लूप लगा लें, लूप लगा के एक और लिस्ट क्रिएट कर लें जहां पर इसको स्क्वायर को रखा जाए, ठीक है, या फंक्शन कॉल के अंदर किया जाए, या इसको रिकर्जन लगा के किया जाए, या फंक्शन ये फॉर लूप से किया जाए। तो हमने क्या किया, इनमें से कोई मेथड नहीं यूज किया, हमने यूज किया मैप को। मैप को बोला, मैप फंक्शन है प्री डिफाइंड, इसको इसके थ्रू हमने कंट्रोल को बोला कि स्क्वायर नाम के फंक्शन में लिस्ट की वैल्यूज को एक एक करके आइटरेट कर दो। इसने आइटरेट कर दिया और आउटपुट आती गई आ गई। उसको हमने लिस्ट फंक्शन यूज करके कन्वर्ट कर दिया एक लिस्ट के बीच में। तो लिस्ट बन के स्क्वायर के अंदर जाके स्टोर होगी, बस उसको उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ये उसकी आउटपुट आ गई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। ये हुआ है। ये मैप फंक्शन भी यूज होगा काफी जगह पे। बस आपने याद क्या रखना है कि जिसमें वैल्यू पास करनी है, जिससे वैल्यू पास करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू फ्रॉम। हाँ, लूप लगाने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी, उसको हमने साथ के साथ आइटरेट करवा दिया। मैक्सिमम टाइम के क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर देते हैं लूप लगा के। यहाँ पे देखो ना, इसको कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हमने इसको वैल्यूज दे दी, जितनी वैल्यूज पड़ी है, बस सिंपल। आएगा आगे जाके भी शायद इसको काम लेंगे कहीं ना कहीं, डेटा एनालिसिस करेंगे ना जब, वहां पे इसको काम लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर लेंथ फाइंड करनी है मैप फंक्शन से, कितनी इजी है देखो। यहाँ पर अगर हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ 1, लेंथ 2 इज इक्वल टू, क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है यूजिंग मैप फंक्शन। पहले से बना हुआ फंक्शन पड़ा है हमारे पास लेंथ, लेंथ नाम का फंक्शन पड़ा है ना।
हमने बोला 2, लेंथ को वैल्यू दे दो, किसकी वैल्यू देनी है? ये आइटरेट किससे कराना है? लिस्ट 1 से। देखो कितना आसान है, प्रिंट कर दिया लेंथ 2 को। देखो सबकी लेंथ फाइंड होगी। इस केस के अंदर तो मुझे ये लग रहा है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी इजी है। ये देखो राजन ने क्या किया, लैम्डा भी यूज कर लिया साथ साथ। लैम्डा यूज करने की बेटे जरूरत ही नहीं है यहाँ आपको, लेंथ का तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी इजी है मैप वाला, इस केस में स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड। इसने प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं यूज किया क्या? ये रहा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, किसने यूज किया? सर जो है कोड चेक कर। ऑप्टिमाइज्ड नहीं है सर जो है का कोड भी लेंथ फाइंड करने के लिए। ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। हाँ उससे भी इजी है, पर उससे भी ज्यादा इजी यही वाला पड़ रहा है। अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करोगे तो क्या करना पड़ेगा? वैसे वो भी एक लाइन का ही है, पर उसके अंदर लूप तो लगानी पड़ी जाएगी। len 2 इज इक्वल टू, एक लिस्ट बना लो, उसमें क्या फाइंड करना है? len, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, x की कर लो फाइंड। कैसे करनी है कि फॉर x इन लिस्ट 1, प्रिंट कर दो len 2 को। इसमें देखो लूप आ गई ना, लूप आ गई तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशन विल इंक्रीज। इसमें हमने प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया है। मैनी टाइम्स प्री डिफाइंड जो फंक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी 1 में क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमने लूप लगा दी है, कॉम्प्लेक्सिटी n में काम करेगी। ठीक है, किसी और को भी डाउट हो? एक क्लास लेंगे हम ब्रशिंग के लिए, ताकि आपको बार बार पाइथन करनी ना पड़े। जिसकी छूट की वो रिवाइज कर लेगा, जिसकी स्पीड कम है वो स्पीड इंक्रीज कर ले। एक सेशन रखेंगे, पक्का रखेंगे, वैसे टाइम अपने पास कम है, पर हम फिर भी करेंगे इसको। इसने फिल्टर फंक्शन यूज किया हुआ है पहले, फिल्टर फंक्शन, फिल्टर फंक्शन। लोग फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं। फिल्टर फंक्शन, हमने इवन और फाइंड करने हैं, इवन्स फाइंड करने हैं। एक फंक्शन डिफाइन किया हमने, इज इवन। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया a, देन आफ्टर रिटर्न कर दिया इसको कि अगर a डिवाइड हो रहा है 2 से 0। ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा ना। देन आफ्टर हमने एक मेन में जाके नंबर बना लिए, नंबर इज इक्वल टू हमने रख लिए 3 4 5 6 7 8 9 10।
उसके बाद हमने एक प्रोग्राम बना लिया इवन, इसको फिल्टर करके टप्पल करके भेजना पड़ेगा ना। टप्पल अभी नहीं बनाएंगे, अभी इसको लिस्ट ही बना लेते हैं, लिस्ट। नंबर प्रिंट कर देते हैं। देखो क्या समझ में आया इसमें। छोटा सा प्रोग्राम है 4 लाइनों का, इसमें क्या समझ में आया? यस राहुल, इवन नंबर्स फिल्टर कर रहा है वो ऑलरेडी। अच्छा, अगर फिल्टर नहीं लगाते तो? अगर फिल्टर नहीं लगाते तो कैसे काम करेगा? वो तो हमने उसको कमांड दी है कि इसको स्टोर करो लिस्ट में। अगर हम इसको टप्पल में कर देते तो टप्पल बन जाता। क्या बेनिफिट है फिल्टर का? फिल्टर फंक्शन का बेनिफिट भेजो। मैप फंक्शन से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो मैप वर्सेस फिल्टर क्या डिफरेंस है दोनों में, बताओ। अगर यहाँ पे मैप यूज करते तो क्या आउटपुट आती? बताओ, मैं तो प्रिंट करने लगा हूँ फिर। तो कहीं यही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। सेम नहीं आएगी। आई बात समझ में? देख लो डिफरेंस, देख लो दोनों में। ये डिफरेंस है। इसने क्या रिटर्न दिया? इसने इसका जो रिलेशनल था यहाँ पर, रिलेशन क्या था कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इसने ये प्रिंट करवा दिया। पर जब हमने इसको फिल्टर में रखा तो इसने क्या किया, फिल्टर आउट करके हमें वैल्यूज दी कि कौन सी वैल्यू के ऊपर ये कंडीशन दे रहा था। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इसने वैल्यूज दी हैं फिल्टर आउट करके, इसने इसने पूरा का पूरा फंक्शन की जो नॉर्मल आउटपुट है। हाँ, ये बूलियन तो रिटर्न करेगा। अरे राहुल, क्या बात कर रहे हो, कौन से लेवल पे चले गए तुम? ये बूलियन तो रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा नॉर्मली तो। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ये। अगर हम प्रिंट कराएं कि इक्वल टू टू, ये क्या रिटर्न करेगा? बोलो। अगर ये प्रिंट कराएंगे तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, वैसे ही ये है। अगर तो ये डिवाइड होके जीरो के इक्वल है तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न। तो जो रिटर्न कर रहा है उसके साथ उसने इसने मैपिंग कर दी और सिंपल प्रिंटिंग कर दी। फिल्टर क्या कर रहा है, जब ये इसके साथ ट्रू हो रहा है, जिस टाइम के ऊपर ये ट्रू हो रहा था उस टाइम के ऊपर की वैल्यू को स्टोर कर रहा है वो, ना कि उसकी बूलियन वैल्यू को। यही तो फिल्टर फंक्शन का डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्टर फंक्शन के साथ यूज करके
लैम्डा को यूज करना है, ठीक है। लंच टाइम के बाद करेंगे ये वाला क्वेश्चन। फिल्टर के साथ लैम्डा को यूज करना है आप। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन विद लैम्डा एंड फिल्टर। फिल्टर और लैम्डा को इकट्ठे यूज करके